Hi guys, welcome back to another video series of Target High Book Revision, episode 4, and the topic is gastrointestinal system. Today we deal with anatomy and physiology of GI system. Firstly, we have covered anatomy and physiology, and you guys seen mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, layers of digestive system. In this topic we will cover all of these. Firstly, we have to understand what is GI system. Gastrointestinal system extends from mouth to anus, and the total length of this alimentary canal is 23 to 26 feet. Firstly, we have discussed about length of GI system. Extend from total length is 23 to 26 feet. Okay, part of GI system includes mouth, pharynx, esophagus, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो यहाँ पे ये हमारा माउथ आ जाता है, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and layers of digestive system. इसमें एक चीज़ और आ जाती है, rectum and anus. Okay, so we will cover first mouth. So we write down the heading of mouth. Okay, and discuss about mouth. Mouth is the first site of digestion. First site of digestion. Three pair of salivary glands are named as three pair of salivary gland. That is parotid, submaxillary, and sublingual. ओके, और इसको हम सबमेंडिबल भी बोलते हैं. सबमेंडिबुलर, ठीक है. Approximately 1.5 liter of saliva is secreted daily. 1.5 liter सलाइवा डेली सिक्रेट करती हैं ये. Okay, and parotid is the largest salivary gland. Is the largest salivary gland. Okay, and mumps viral infection affect parotid glands. And next submaxillary gland is the gland with the longest duct. Submandible, सॉरी, सबमैक्सिलरी ये वाली ग्लैंड है और इसके पास हमारे लॉन्गेस्ट डक्ट होती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव ईसोफेगस. ईसोफेगस को डिस्कस करते हैं.
ठीक है। ईसोफेगस इज अ collapsible tube of 25 centimeter length is a collapsible tube of 25 centimeter length located in the mediastinum of thoracic cavity. ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड इन द mediastinum of thoracic cavity. It is located anterior to the supine and posterior to the trachea of heart, and it passes through the diaphragm at the opening of called diaphragmatic hiatus. एक ओपनिंग मिलती है जिसको बोलते हैं diaphragmatic hiatus. Upper esophageal sphincter prevent the entry of air into the esophagus, and lower esophageal sphincter prevent gastroesophageal reflux disease. GERD आपने पढ़ा होगा. If lower esophageal sphincter fails to close properly, it leads to GERD and then to Barrett's esophagus. Upper position of esophagus and external sphincter of the anus are under voluntary control, and the remaining portion of are involuntary in control. So कुछ पार्ट इसका वॉलंटरी में होता है, मतलब आपके कंट्रोल में होता है, एंड कुछ पार्ट होता है हमारा इनवॉलंटरी. ओके, नेक्स्ट वी हैव डील विद द स्टमक. स्टमक हमारा थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाएगा, बट हम इसको करेंगे कंप्लीट. रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहिए प्लीज़. मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको. बस जस्ट अ मिनट. अब स्टमक इज अ डिस्टेंसिबल पाउच लोकेटेड लेफ्ट टू द मिड लाइन जस्ट अंडर द लेफ्ट डायफ्राम. इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. लोकेशन कहाँ बता रहा है ये? तो इट इज डिस्टेंसिबल पाउच located left to the midline just under the left diaphragm. ओके, कैपेसिटी इसकी आ जाती है हमारे पास. इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है.
1500 ml, and the inlet of esophagus into the stomach is known as esophagogastric junction. तो जब हमारा इनलेट होता है तो उसको बोलते हैं इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। ओके, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, esophagogastric junction is surrounded by a ring of stomach, a smooth muscle known as lower esophageal sphincter or cardiac sphincter। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर से बोलते हैं, जिससे कवर्ड होता है स्मूथ मसल से। इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, अब इस स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 एनाटॉमिक रीजन। तो स्टमक 4 रीजन में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्स्ट है हमारा कार्डियक, इसका दूसरा नाम है एंट्रेंस। सेकंड है हमारा फंडस। थर्ड है हमारा बॉडी, एंड फोर्थ है पाइलोरस। इसको आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल इन द वॉल ऑफ पाइलोरस बिकम्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इसकी सर्कुलर मसल्स को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही जो करता है, इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है ओपनिंग ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, stomach produce 2.4 liter of gastric juice per day। 2.4 liter of gastric juice per day, जो कि एक जान लेने वाली बात है, मतलब जानना चाहिए इस चीज़ को हमें, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एंड गैस्ट्रिक चीफ सेल कौन कौन से होते हैं, जाइगोमेटिक सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक चीफ सेल, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता मतलब इसमें वीडियोस में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले सीखने के लिए, ना कि हम बात करें यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो अब गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जो होती हैं वो जाइगोमेटिक, सॉरी जाइगो मायोमेटिक, ZY जेनिक, मायोजेनिक सेल्स, या फिर इनको बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। और ये होती हैं पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं। पेप्सिनोजन विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पैराइटल सेल्स, ऑक्सीनिटिक सेल्स
और डी लोर्मोफोरस सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पेराइटल सेल HCl सिक्रीट करती है हमारा। पेराइटल सेल सिक्रीट HCl and intrinsic factor. Okay, intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin B12. ये essential है किसके लिए? Absorption के लिए of vitamin B12। ये हमारा हो गया पूरा कच्चा चिट्ठा माउथ का। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, the longest segment of the GI system। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? The longest segment of GI system। It is divided into three parts। First is called duodenum, 25 centimeter, shortest part of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट पार्ट। Okay, then second is duodenum, and third is 8 feet high। Third is ileum, ये 12 feet। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक प्लेस इन इलियम। इसमें हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। And the common bile duct allows the passage of both bile and pancreatic secretion। जो हमारी बाइल डक्ट है वो पैसेज प्रोवाइड करती है फॉर बाइल एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। Okay, common bile duct empties into the duodenum at ampulla of water, and this opening is surrounded by sphincter of ODI। अब जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है वो कहाँ पे ख़त्म होता है? ड्यूडेनम में, और जिसको सराउंड करके रखता है स्फिंक्टर ऑफ ODI। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ODI कंटेन्स 3 स्फिंक्टर्स। इसके पास 3 स्फिंक्टर्स होते हैं। Junction between small intestine and the large intestine is the cecum। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन को बोलते हैं सीकम।
which is located in the right lower quadrant, and ileocecal valve is located here. Here, prevent the reflex. अब इलियोसिकल जो है हमारा, ये क्या काम करता है? इलियोसिकल वोल्व कंट्रोल द एंट्री ऑफ कंटेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब एक चीज़ और, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? इज लोकेटेड नियर द इलियोसिकल जंक्शन। ये नियर है किसके? इलियोसिकल जंक्शन के। ठीक है, इन द लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये भी RLQ राइट लोअर क्वाड्रेंट के नज़दीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट इन परनीसियस एनीमिया। अगर किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वो रिजल्ट हो सकता है कि उसे हो परनीसियस एनीमिया। ओके, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होता है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना रिवाइज करके। यहाँ पे अब हम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। मैं सही कह रहा हूँ भाई, इसको हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे वैसे बुक को अगर हम रोज ऐसे पढ़ेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये मीटर है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कमेंट में बताओ जल्दी कौन कौन से है वो पार्ट। वो पार्ट है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। Colon is further divided into ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon। ओके, अब यहाँ पे हमारा रेक्टम कंटिन्यूज इन एन एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। रेक्टम कंटिन्यू करता है बाहर की तरफ को, जिसको ओपनिंग बोलते हैं हम, इज एनस। ओके, अब नेटवर्क ऑफ स्ट्रेन मसल फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर यहाँ पे पाया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं लेयर्स ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले लेयर्स आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है। Contains many of the goblet cell। goblet cells को कंटेन करती है विच सिक्रेट म्यूकस, और जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। ओके, देन हमारी सेकंड लेयर आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या करती है? कंटेन्स नर्व इंक्लूडिंग द सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। ये क्या करके रखती है? कंटेन करती है सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, जो कि दूसरा नाम इसका है मैसेंजर प्लेक्सिस। ब्लड वेसल्स एंड इलास्टिक फाइबर विद कोलेजन। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स विद कोलेजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर होती है कंप्राइज बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स विद हेल्प ऑफ कंटिन्यूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करती है। इसमें स्मूथ मसल्स और सर्कुलर प्रेजेंट होती हैं। लास्ट हमारी सेरोसा, या फिर दूसरा नाम एडवेंटिया। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोटेड इन म्यूकस, सो इट हैज प्रिवेंट बाय एनी फंक्शनल डैमेज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल रबिंग अगेंस्ट द अदर टिश्यू। अगर ये स्मूथ होती है तो रबिंग में भी इसको दूसरे टिश्यू से हेल्प मिलती है, मीन्स ये किसी को दिक्कत नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई टू द जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम को ब्लड सप्लाईज कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं ये देख लेते हैं। जीआई सिस्टम सप्लाई बाय आर्टरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल एंड थोरेसिक अरोटा। आर्टरीज के द्वारा होती हैं, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम थोरेसिक एरोटा। अब स्टमक में कहाँ से होती है? गैस्ट्रिक आर्टरी से। ओके, और विच इज़ अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ये ब्रांच है किसकी? SELE स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, उससे होती है जनरेट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से होती है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में सुपीरियर, मेसेंट्रिक आर्टरी, ये भी एक ब्रांचेस है। ओके, कोलोन में कहाँ से होगी? सुपीरियर, मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके, राइट कोलिक एंड मीडियल कोलिक ब्रांचेस एंड inferior mesenteric artery, लेफ्ट कोलिक एंड sigmoid ब्रांचेस, ये सब यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट वी हैव डील विद द nerve supply, nerve supply of to the GI systems कहाँ से होती हैं? तो नर्व सप्लाई जीआई सिस्टम में कहाँ से जाती है? बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सप्लाई द जीआई सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम exert inhibitory action on GI system, that is it decrease gastric secretion, motility and constrictions of sphincter and blood vessels. Sympathetic nervous system slow down GI activity and parasympathetic nervous system speed up the GI activity. तो sympathetic और पैरासिम्पैथेटिक ये तो कर देगा हमारा, सिंपैथेटिक क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा जीआई एक्टिविटी, और ये क्या कर देगा? स्पीड अप जीआई एक्टिविटीज को। अब नेक्स्ट, डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। सो डाइजेशन प्रोसेस तो मैं आपको ऐसे ओरली समझा दूंगा। प्रोसेस इन ह्यूमन, ओके, तो समझते हैं। सोलोइंग ऑफ अ वॉलेंट्री एक्ट, swallowing is a voluntary act and is controlled by medulla oblongata. सबसे पहले हम swallowing करते हैं और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? मेडुला ओब्लंगाटा का, ठीक है। And pancreatic secretions have an alkaline pH because of high concentration of bicarbonate. Parts of the digestive system: mouth, pharynx and esophagus, stomach, small intestine. अब इसमें एंजाइम कौन कौन से आते हैं? माउथ में आता है हमारा पटाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। माउथ में आता है पटाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। ओके, फिर हमारा आता है फेरिंग्स में एंड इसोफेगस, स्टमक में HCl मिलता है इसको। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे मिलता है उसको पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, बाइल एंड बाइल सोल्ट, ये सब मिलते हैं।
Okay. Next we have disorder of gastrointestinal system, disorder of lip, mouth and gums. So disorder of GIT continue in next lecture. ओके, अभी आप फिलहाल इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम डिसऑर्डर को रिवाइज करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय. बाकी ये सब जो हमने रिवाइज किया इसको आप देख लीजिए एक बार. पूरा हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम रिवाइज कर लिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. कल को हम करेंगे डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पार्ट 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Subscribe to our channel for making more videos like this, and I complete this series for you.